Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So today we are discussing one of very important aspect, you and your job. Now, as an unemployed youth, what is your priority? Your priority is to get a job and remove the tag of unemployed person. This is the one of the priority of each and every unemployed person. Now, how we can achieve this objective? This objective can only be achieved if we are focused and if we don't deviate from our path or we follow a religious method of preparation so that we crack the competition if we are looking for a job that we can get through competition. There may be jobs where you have to simply appear for interviews, but if you want to enter into banking, you require to crack competitive examination followed by interviews if you are going for officer cadre. In clerical cadre, interviews are not there. So today I received one message. In that message, this person asked me to discuss some aspect and more especially regarding banking. He told me, sir, I have heard that in banking some people misbehave with their fellow employees, and due to that, one of my friend is advising me not to go to bank or go for banking job. Please make the position clear. What is your view? Should we aspire for banking or should we go for some other sector? Now let's put the things in right perspective. That will give you idea. This is your own judgment and own decision how to take. As per the data available, as at March 2023, the total number of employees working in public sector bank is close to 7,45,000. Now, out of this 7,45,000 employees, most of the employees may be happy with the job or may not be happy with the job, because that depends upon the posting of a person, the set of people those are working him or around her, and the type of job that is given to this person. So if we look at the instances where some videos are shared where someone misbehaved with some other person, that number may be in tens or hundreds. But by seeing 10 videos or 50 videos, can we paint all the 7,45,000 employees with the same brush? Whether in each and every branch people are misbehaving with each other, whether every employee is ill behaved or not behaving properly with others, I don't think that is the case. Now, where the answer lies for such situation? See from your own eyes. If you have seen some video and that is affecting your mindset, the better is cross check. Visit all possible branches near your home of public sector and see whether such environment is there or not. This is up to you. Nobody can guide you, nobody can force you to come to a sector. In every sector, many people may be happy, many people may be unhappy. There may be good incidents in some organization, there may be some bad incidents in the organization. Whether few incidents should affect you to choose a job or not, that is the question that you have to ponder and decide yourself. Because I would not like to comment on such type of incidents. Naturally, if some incident has happened, it is not good. There should be zero such incidents. But in real life, there may be some isolated incidents.
We cannot paint an industry or a sector merely on the basis of few instances or few cases. So this is your choice. I don't want to comment on such things. At the same time, I am strongly believing any such incident must be condemned. If somebody has misbehaved with some other person, maybe senior with the junior or any colleagues, that should not be accepted and that should be corrected. But that should not become deterrent for you. Deterrent for you. God bless you all. If you want to go to banking industry, this channel provides you guidance how you should prepare for bank and insurance exam. Follow daily timetable, it will help you. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. आप और आपकी जॉब, ये आज का हमारा विषय है और इसमें हम एक बड़ा विषय ले रहे हैं जो कि इस बात पर बनाया गया है कि आज मेरे को एक मैसेज आया. उसमें कैंडिडेट ने कहा कि सर, मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं जिसमें कुछ सीनियर ऑफिसर अपने जूनियर के साथ ठीक व्यवहार नहीं कर रहे हैं और मेरे दोस्त भी मुझे कह रहे हैं कि आपको बैंकिंग में नहीं जाना चाहिए. इस विषय पर आप एक वीडियो बनाएं. नॉर्मली मैं इस तरह के विषयों को नहीं उठाता हूं अपने चैनल पे, क्योंकि मैं इस तरह के इंस्टेंसेस को आइसोलेटेड इंस्टेंस मानता हूं. मगर फिर भी क्योंकि आपने रिक्वेस्ट की, तो आज के इस वीडियो में हम इस विषय को ही चर्चा कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा आपके मन के अंदर क्लैरिटी आए कि सच्चाई क्या है. इसके बारे में मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखूंगा और आपको खुद निश्चित करना है कि आपको क्या करना है. पहली चीज़ तो ये है कि जो व्यक्ति अनएम्प्लॉयड है उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि उसको एम्प्लॉयड होना है और एम्प्लॉयड वो उसी क्षेत्र में हो पाएगा जहाँ पर अपॉर्चुनिटी है. तो ये चीज़ तो हमें पहली चीज़ अपने मन में क्लियर करनी है. दूसरी चीज़ हमें ये समझना है कि मार्च 23 का जो आंकड़ा है पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, उसके अंदर 7,45,000 एम्प्लॉइज़ आज काम कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर्स के अंदर. तो अगर हम जो इंस्टेंसेस आप जिसकी जिक्र कर रहे हैं या जो वीडियोज़ आप देख रहे हैं, अगर उनकी संख्या देखी जाए तो वो हो सकता है कि 10 के से कम हो या 100 से कम हो, मतलब सैकड़ों में ही होंगी, हज़ारों में नहीं है, ना वो लाखों में है. अगर आप लाखों कर्मचारी को देखेंगे तो उसमें से काफ़ी लोग खुश होंगे अपनी जॉब के साथ और काफ़ी लोग दुखी भी होंगे. दोनों तरह के लोग आपको मिलेंगे और वो हर सेक्टर में मिलेंगे, खाली बैंकिंग में नहीं मिलेंगे. कोई भी आपको सेक्टर नहीं मिलेगा जहाँ 100% लोग अपने नौकरी से खुश हों, क्योंकि आपकी खुशी या आपका दुख कई बातों पर निर्भर होगा. आपको पोस्टिंग कैसी मिली है, आपके कुलीग कैसे हैं, क्योंकि सभी लोग एक जैसे नहीं होंगे, सभी अच्छे नहीं होंगे, सभी बुरे नहीं होंगे. तो क्या कौन से स्टेशन पे आप पोस्टेड हैं, आपको जॉब क्या दिया गया है, वो जॉब आपका मनपसंद है नहीं है. तो कई कारण ऐसे हैं जो इस बात को डिसाइड करेंगे कि क्या आप खुश हैं अपनी नौकरी से या नहीं है. और जब आप लोगों से बात करेंगे तो तरह तरह के रिस्पॉन्सेज भी आपको देखने को मिलेंगे. अब किसी सीनियर ने किसी जूनियर के साथ मिसबिहेवियर किया, ये तो निंदनीय है ही, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए और सब लोग इसकी निंदा भी करते हैं. पर अगर कहीं पर ऐसा इंसिडेंट हुआ, क्या उसका ये मतलब निकाला जाए कि हर ब्रांच के अंदर हर सीनियर ऑफिसर हर जगह ऐसा ही कर रहा है? ये भी एक गलत पेंटिंग होगी किसी भी सेक्टर की. हम सबको एक ब्रश से पेंट नहीं कर सकते हैं. व्यक्ति पर डिपेंड करेगा कि उसका बिहेवियर कैसा है अपने साथियों के साथ, अपने जूनियर्स के साथ. काफ़ी लोग आपको जीवन में अच्छे भी मिलेंगे, काफ़ी लोग बुरे भी मिलेंगे. इसलिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप अपनी आंखों से देखिए कि क्या हो रहा है दुनिया के अंदर. अगर आपने 2-4 वीडियो देख लिए जिससे आपको निराशा आई है, तो आपको अपने आसपास की सारी ब्रांचें जो पब्लिक सेक्टर की हैं एक बार खुद विज़िट करनी चाहिए
और वहाँ देखना चाहिए क्या उस ब्रांच के अंदर रोज़ एक दूसरे को लोग तंग कर रहे हैं, या कुछ ब्रांचों में लोग खुश भी हैं, या कैसा माहौल है वहाँ पे। तो जब आप अपनी आंखों से देखेंगे तो आप इसके ऊपर फैसला कर पाएंगे। सिर्फ कुछ वीडियोस को देखने के बाद अपने मन में धारणा बना लेनी कि मुझे इस सेक्टर में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, मेरे हिसाब से सही नहीं है। ऐसी चीज़ें आपको हर सेक्टर में देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि ये एक व्यक्ति विशेष चीज़ है। जो व्यक्ति वहाँ पर दूसरे व्यक्ति से डील कर रहा है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, वहाँ पर उसको क्या प्रोवोकेशन हुई या क्या ऐसा हुआ कि उसने ऐसा बोला, इसकी हम बैकग्राउंड तो नहीं पता है ना। तो इसलिए किसी भी आइसोलेटेड इंसिडेंट को लेकर हमें किसी भी सेक्टर की ओपिनियन नहीं बनाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मगर फिर भी मैं कहूँगा कि इसका फैसला आपका अपना है। अगर आपको लगता है कि किसी और क्षेत्र में आपको ज़्यादा अच्छा जॉब मिल रही है या ज़्यादा अच्छा आप रहेंगे, तो वो तो आपने चुनना ही है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने सर्कमस्टांसेस के हिसाब से अपने लिए बेस्ट जॉब का सिलेक्शन करेगा। मगर क्या वो मिल रहा है आपको? अब कोई आदमी हो सकता है कि डिज़ायर कर रहा हूँ मैं ये बन जाऊँ, पर वो चीज़ आपको मिल ही नहीं रही। तो आपको नेचुरल है, लाइफ में सेटल होना है, तो आपको उसी में से चुनाव करना है जो उपलब्ध है, ठीक है ना। तो कई बार ये भी कहा गया है कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जो लोग सुख की बात करते हैं वो कि कई बार ऐसा भी हमें संदेश देते हैं कि जो कुछ आपके पास है, अगर आप उसके अंदर संतोष करना सीख लें तो आपका जीवन बड़ा अच्छा व्यतीत हो सकता है। पर ऐसा नहीं है कि हमारी एस्पिरेशन नहीं होनी चाहिए, ऐसा भी नहीं है कि हमारे सपने नहीं होने चाहिए, ऐसा भी नहीं है कि हमें अधिक से अधिक अच्छी पोजीशंस पे जाने की कोशिश करनी चाहिए। क्या अच्छा है क्या बुरा है ये हर व्यक्ति के लिए अलग होगा, सबके लिए सेम नहीं होगा। कुछ के लिए बैंकिंग उनका लाइफ ड्रीम होगा, कुछ लोगों के लिए बैंकिंग अच्छा नहीं होगा। तो ये आपको अपने हालात के आधार पर फैसला करना है। इसमें मैं आपको अपनी राय नहीं देना चाहूँगा। जहाँ तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत बेहतरीन है बैंकिंग के अंदर, मुझे कभी भी तकलीफ़ नहीं हुई उसके अंदर, और मैं बहुत अच्छा जीवन मैंने व्यतीत किया है बैंकिंग के अंदर। मगर मैं इसके लिए ये नहीं कहूँगा मैंने अच्छा व्यतीत किया है, आपको भी अच्छा ही जीवन मिलेगा उसके अंदर। ये आपकी सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है, आपको कहाँ पोस्टिंग मिलती है, आपको क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, आपकी माइंडसेट क्या है, तो ये व्यक्तिगत मामला है। मगर अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो मेरी सलाह आपको ये है कि आपको जल्द से जल्द एम्प्लॉयमेंट लेनी चाहिए और उन नौकरियों की कोशिश करनी चाहिए जहाँ पर ये नौकरी उपलब्ध है। अगर आपका मन बनता है कि मुझे बैंकिंग में जाना है तो ये चैनल आपकी मदद कर रहा है, कैसे तैयारी कर रहे हैं, डेली टाइम टेबल वीडियोस हम डाल रहे हैं, उसको देखिए और उसको इम्प्लीमेंट करिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।